कुछ नॉन प्रॉफिट्स भी चलाते हैं। हेल्थ केयर और एजुकेशन में ज्यादा फोकस है। Sure. Sejal, please. Hi, my name is Sejal Jain and I'm currently working as country manager in learning while traveling. Thank you. Thank you. Nandan, please. Hello, my name is Nandan. I'm from Hyderabad. I'm currently doing my own 2 projects, basically into education platform and into construction platform. Thank you. Thank you. Abhishek Janta, please. Hello, myself Abhishek Kumar from Ajanta Group. Basically, my organization work in the field of LED light and robotics. Thank you. Muskan, please. Yes, am I audible? Yes, yes. Yeah, my name is Muskan. I'm right now pursuing MBA in finance from IMT New Delhi. And I also do CS and working in partnership with a CA firm. Thanks. Thank you. Mr. Hari. Yeah, my name is Hari Kutti, and I'm currently working with National Chromatography Incorporation as a product development manager, taking care of fan business for HPLC consumables. And I have completed my engineering in instrumentation. Post that, I have done my PGDM in marketing and HR from Welling Trust. Thank you. Thank you. Ravi, please. Hi everyone, am I audible? Yes. Am I audible is a line of the year. Just to get the notification, like people will tell you, Raviji, if you're not audible, so don't worry about that. Right. By default, assume you are audible. Yes. So very good evening. This is Ravi Kumar from Bangalore. I am professionally I'm a sales guy. Expertise into business development. Almost 10 years of experience into building automations and IoT products. Okay, thank you. Saurabh Dayal, please. I am Saurabh. I'm an entrepreneur. Thank you. Thank you. Okay, so today, basically continuation of yesterday's topic on financial literacy. So today we'll dig a bit deeper on the banking sector, and like I mentioned in the agenda, that we'll talk about various loans today, and if time is left, we can also explore other things. So okay, let's understand the psychology of let's say education loan to start. Let's go in the sequence as mentioned. Education loan. So plus there are probably plus and minus, or maybe mostly plus and less minus, based on our own judgment. So let's hear from everyone. What do you think? Education loan has more pluses or more minuses according to individual as such? So Atul sir, what do you think? More plus, more minus, neutral, 50-50? क्या बोलते हैं education loan? So you're saying कि education loan? Education loan as a product, is it good? I mean, has good points, bad points? No, it's a great thing to have, because among the many investments any person can make, education is one of the best investments with the most more likelihood of returns over long term. So it's an investment worth making. And just like an education also obviously has some cost of delivering the education. So be it a building, be it the curriculum, be it the faculty, teachers, everything has a cost. So it cannot be completely free. And for that, sometimes some of the highest quality education might be expensive. So it might be worth taking a loan. But what is missing often is that very often students get fooled or get uninformed about the returns they're expecting. So I can give for examples of, like India, there was a very famous place, I forgot the name, बहुत बड़ा एजुकेशन का एम्पायर किया था, अरिंदम चौधरी.
तो उसने बहुत लोगों को बहुत ठगा एजुकेशन के थ्रू। उसके फादर का भी बिजनेस था, तो बट और बदले में साथ में काफी महंगी फीस की, और साथ में वो एक बाहर का भी एक ट्रिप लगा देता था, उसी में फीस में इंक्लूडेड था। तो उसमें रिटर्न्स, और मैं जानता हूँ, मैं एक क्लासमेट फ्रेंड के भाई ने भी एडमिशन लिया था, मैंने मना किया बट फिर भी उसने ले लिया एडमिशन, और बाद में नौकरी लगी नहीं, और प्लेसमेंट के लिए तो आपने 10 लाख 20 लाख खर्च किया पढ़ाई के लिए और रिटर्न नहीं मिलता है। तो इसमें सिमिलर प्रॉब्लम इट कम्स विद लेट्स से टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पे आपने बहुत सारे लोग इंडिया से पेरेंट्स के पास ने यूएस भेज दिया, पैसा था तो भेज दिया, बट कुछ लोगों के पास ऐसा नहीं था, उन लोगों ने भी भेज दिया कि चलो वहाँ पढ़ ले। बाद में उनको 6 महीने 1 साल तो लग ही जाते हैं लोन चुकाने में। तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन आपने गलत चॉइस किया, तो ये आपकी गलती है। थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है कि किस एजुकेशन का क्या रिटर्न मिलेगा, और आपका क्या रिस्क एपेटाइट है, क्या कैपेबिलिटी है। अकॉर्डिंगली यू शुड ओनली buy an education which can afford you, and don't buy something which is beyond it. अपने परिवार को, अपने माँ पिताजी को बैंकरप्ट मत कीजिए अपने एजुकेशन के लालच में। उनके इंटरेस्ट में आप जो मांगोगे पेरेंट्स आपके एजुकेशन के लिए लगा देंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ यू हैव टू मेक श्योर कि अल्टीमेटली रिटर्न करने की जिम्मेवारी आपकी है। जिसने पढ़ाई की, यू हैव टू रिटर्न बैक, एंड अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा तो आप नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा केयरफुल डिसीजन होना चाहिए, और जो बेनिफिशियरी है, जो स्टूडेंट है, उसका भी थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो अर्ली एजुकेशन ठीक है, प्राइमरी सबके लिए होना चाहिए फ्री में, गवर्नमेंट के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, बट हायर एजुकेशन मेरे ख्याल से शुड ओनली बी on need basis and should be mostly be funded by the students by loans and stuff like that, or not from parents money, मेरा ऐसा मानना। Okay. Yes, Abhishek, your comment on educational loan. हेलो। हाँ बोलो। नहीं, एजुकेशन लोन को हम 100% अच्छा मानते हैं। इसे बेनिफिट क्या होता है, जैसे हम खुद 4 लाख रुपए का एक कॉलेज ज्वाइन करने से पहले एजुकेशन लोन लिए बिहार गवर्नमेंट से। ऐसा नहीं था कि अगर मेरे पेरेंट्स चाहे रहते हैं तो वो पैसा नहीं दे पाए रहते, मतलब वो दे दिए रहते, लेकिन फिर भी हम ही उनको बोले कि नहीं हम एजुकेशन लोन लेंगे, और उनका भी थोड़ा बहुत मतलब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं था, तो हम लोग एजुकेशन लोन लिए। इससे बेनिफिट मेरे को क्या दिखता है कि एक स्टूडेंट के अंदर प्रेशर रहता है कि हमको लोन चुकाना है, ठीक है। तो उस कारण से भी बहुत सारे लोग मतलब प्रेशर से बोलिए या जिससे बोलिए अच्छा से पढ़ाई कर पाते हैं लोग। और जब एक कॉलेज छोड़ने के करीब आता है तो 6 महीना साल भर पहले उनको प्रेशर मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट को दिखने लगता है कि हाँ भाई अब मेरा समय करीब आ रहा है, 1-2 इंस्टॉलमेंट बचा है, तो अब इस लोन को चुकाना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको चुकाने को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट अपना प्रयास करने लगते हैं कि या तो हमको जॉब लग जाए या जिसको भी जिस फील्ड में जाना है। तो हम एजुकेशन लोन को अच्छा मानते हैं, और जो मतलब नहीं लेते हैं उनको ये रहता है कि हाँ मेरे पापा के पास है, जो बोले फैमिली में बहुत सारे पैसा है, ये हमको क्या टेंशन है। तो बहुत सारे लोग मतलब बैकग्राउंड का पैसा देखकर भी एक घमंड से बर्बाद हो जाते हैं कि अगर हम कुछ नहीं भी करते हैं तो मेरा बैक सपोर्ट है। इस चीज को अच्छा हम नहीं मानते। हम तो कहते हैं कि जिसके पेरेंट्स के पास पैसा भी हो उसको भी थोड़ा बहुत ही स्टूडेंट के ऊपर एजुकेशन लोन दिलवाना चाहिए। अच्छा चीज मानते हैं हम इसको। yes. Sure. Saurabh, your comment. आई थिंक एजुकेशन लोन उनके लिए है जो फाइनेंशियली नहीं पैसा दे सकते, तो आई थिंक उनके लिए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बिकॉज इट गिव्स देम एन अपॉर्चुनिटी टू डू
कोर्स फ्रॉम अ गुड कॉलेज. अदरवाइज वो एक बहुत ही लो कॉस्ट कॉलेज से पढ़ेंगे, शायद वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना हो, शायद एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं हो. तो मुझे तो इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं लगता है. और अगर नेगेटिव निकालना ही है तो वो तो किसी भी प्रोडक्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों निकाल सकते हैं. हम प्रोडक्ट पे आज क्वेश्चन कर रहे हैं कि एज अ प्रोडक्ट क्या एजुकेशन लोन इज अ गुड प्रोडक्ट और अ बैड प्रोडक्ट. तो हर प्रोडक्ट का जैसे सोशल मीडिया है या इंटरनेट है, इंटरनेट का पॉजिटिव चीज भी है, नेगेटिव चीज भी है. तो एजुकेशन लोन का नेगेटिव मुझे तो समझ में आ नहीं रहा है. अभिषेक ने जो पॉइंट बोला कि वो लेना ही चाहिए बिकॉज उससे प्रेशर आ जाएगा, और प्रेशर आना चाहिए मतलब जिसके पास पैसा है वो भी प्रेशर लेके ले, तो मुझे तो लॉजिक समझ में नहीं आया. मतलब जबरदस्ती इंटरेस्ट पे करो, मतलब 10 लाख का कोर्स में 12 लाख रुपए दो, 2 लाख देकर प्रेशर ले लो. तो मुझे लॉजिक को समझ में नहीं आया, बट मुझे कोई नेगेटिव नहीं दिखा इसका. Sure. Okay, Hari. प्लस एक और चीज Yes. बोलना चाहूंगा कि बाहर के Yes. इंडियन स्टूडेंट्स को, जैसे मेरे रिलेटिव्स में बहुत सारे लोग हैं जो विदेश जाके पढ़ाई किए हैं और सब एजुकेशन लोन पे गए हैं, क्योंकि वो, और एजुकेशन लोन नहीं होता तो वो विदेश जा ही नहीं पाते. तो ये एक पॉजिटिव चीज है मेरे लिए. तो ये अपॉर्चुनिटी है कि आप विदेश जाके भी पढ़ सकते हो. Correct. Yes, Mr. Hari, please. यस, मैं डिसएग्री करूंगा सौरभ के पॉइंट से कि अगर पैसा है तो लोन लेने की जरूरत नहीं है. या मैंने काफी ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो वेल फैमिली से है, लोन की कोई जरूरत नहीं है उनको, बट स्टिल देयर फादर हैव ऑप्टेड फॉर एजुकेशन लोन बिकॉज टैक्स सेविंग होता है उसमें उनका. मे बी दे कैन शो इट एज एन एक्सपेंस, EMIs एंड ऑल. और सेकेंडली दे कैन, जो प्रेशर की बात है, अगर if the child knows like his father is very from well to word family और पैसों की कोई कमी नहीं है, तो वो प्रेशर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पेरेंट्स के लिए. तो ऐसे सिचुएशन में वो लोग लोन लेके दे कैन डू द थिंग लाइक एजुकेशन लोन वगैरह दिलवा देते हैं. दिस इज वन लॉजिक बिहाइंड दैट कि इवन इफ यू हैव 10 lakhs still you pay 12 lakh. So ये यहाँ पे एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के ऊपर कि लोन लेना चाहिए कि नहीं एजुकेशन लोन. और सेकेंडली मैं ऐसा बोलूंगा कि द इंटरेस्ट फ्री लोन दैट यू विल गेट इज फ्रॉम योर फादर्स पॉकेट. सो इंटरेस्ट फ्री लोन आपको कहीं से नहीं मिलेगा, पिताजी दे सकते हैं. सो पिताजी का पैसा लो, पढ़ाई करो, जॉब लो, पैसा रिटर्न करो या कुछ और करो, उसमें घर काम करो, ये सब करो. मेक देम हैप्पी, मेक देम फील, थोड़ा अच्छा उनको फील होना चाहिए कि मैंने पढ़ाया है बच्चे को तो दैट इज वर्थ. ऐसा उनको एक फीलिंग आना चाहिए हमेशा. Yes. Let me take a comment from everyone, then we'll come to Abhishek. Okay. Nandan, yeah, what's your take? Yeah, hi. I would not say it's a positive or a negative, as Saurabh sir told. Like, I would say a negative point also. My friend, an example. My friend, she's from BTech. I'm taking an example as in BTech as an loan. She's right now doing the gap. She's right now as in package of 11 lakhs or 12 lakhs. Right now, I don't know. Because of repaying the loan, she have taken the software as a profession. By the loan only, those explorations were not there, I think so. I would say this is a more negative point because of the loan, as told by others also, the pressure were gone. Ultimately, she got the nice job, but if some other would not got the job, it would be more pressure for them. The only thing by the loan, by this education loan was existing because we don't have a part-time jobs. If we would have a part-time jobs at the time of the BTech only, we would have get the financial thing, and we would have uh, uh, do all the things as an educational things, as an fee things, or overall things. This is my point. The back end point would be different. This is my point. That's it. Thank you. Yes, Muskan, your opening comments on this? Yes, sir.
I think education loan के benefits ज़्यादा है as compared to disadvantages, because actually बहुत सारी middle class families होती है जो afford नहीं कर पाती top B schools वगैरह में भेजना अपने बच्चों को, because top B schools की काफी ज़्यादा फीस होती है, जैसे ISB है उसकी 40 लाख फीस है. So I think every family can't afford that. So I think उसके advantages ज़्यादा है, but I think disadvantage का point यही है कि after college अगर आपको वो placement नहीं मिलती है जो आपने सोचा, तो उसके बाद मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. Yeah. Thank you. Mr. Ravi, please. Okay. So I will put my point in this way. Education loan, for me, it's a thumbs up. Irrespective of economical status, a student who is going into after graduations or maybe after higher secondary must opt for the education loan. Three prominent reasons. One, you will feel the responsibility by passing your course. Maybe in third year, fourth year, you will start feeling it. Yeah, I now become a commodity. I had to get sold in the market. That one feeling give education loan. Second, see the people who are talking about the burden of education loan. Education loan you can start repaying as per your choice. It is not like immediately within after a year you have to start paying it, and you can keep it as long as you want. Bank will not force you even, because government has such a policy for the education loan to leverage the students in repaying the loan amount. So immediately it will not be having effect. You can have exploration in terms of your own terms and conditions. Third thing, see, it also gives parents age in terms of, let's say I'm a parent of 3 kids and one of my kid is in 12th class, one is going to graduations and one is going to post graduations. Now how I am economically good or bad, it's a question, subjective questions, but at the same time it gives me a leverage to take my child or give my child freedom to take up the educations as per their capability. They should not be like back just because of the financial aspect, as one of panelists Muskan was mentioning, like few of the colleges whose fees are very high. At the same time, few who qualify the exams and all, but still because of the financial fees they are not able to comply. So there it play a very vital role in terms of getting students into those colleges. Also, parents to manage his children's well in terms of if more than 1 or 2 children are there in the same strata of education. So these are very prominent 3 points from my side, which says like thumbs up for the education loan. Sure. Ujjwal, your comment please on education loan. यस सर, मेरा बस छोटा सा था कि सर एजुकेशन लाइक सौरभ सर से मैं एग्री करता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज मिलती है टेकिंग लोन, बट प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे और पेरेंट्स को एक चीज सोचनी चाहिए कि किस कॉलेज में हम जा रहे हैं, तो लोन लेना चाहिए कि नहीं. लाइक अमेठी जैसे कॉलेज में हम जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से लोन लेना इस बेवकूफ़ी, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत बढ़िया होता नहीं है और कुल कितना भी पढ़ लो तुम्हें पैकेज बहुत अच्छा नहीं मिलेगा और बाद में तुम्हारी जॉब भी छूटने की चांसेस ज्यादा रहती है. सिर्फ प्राइवेट कुछ कॉलेजेस, अमेठी तो एक है. तो मेरे ख्याल से अगर IIM जैसे कॉलेज जा रहे हो या हार्वर्ड जैसे कॉलेज जा रहे हो तो यू टेक अ लोन, बट ऐसे नॉर्मल से कॉलेज जा रहे हो तो लोन लेना मेरे ख्याल से नहीं. तो तुम कोई ऐसे ही नॉर्मल से कॉलेज से पढ़ लो सस्ती फीस में. यस. Okay. Karthikeya, your comment, big comments on education loan. Yeah, hi, good evening everyone. So I personally think that जब तक extremely ज़रूरी ना हो तब तक an education loan does not really, I mean at least I would not prefer that. Other than that, I think of course it's fine. Of course pros and cons होते हैं, we can discuss that. But yeah, personally I would think that जब तक ज़रूरी ना हो तब तक it doesn't make sense. Yes, sir, please. So now everyone can raise their hand if they want to speak. Saurabh, please. दो चीज बोलना चाहूंगा. बहुत सारे स्पीकर्स ने कहा कि पैसा है तब भी लोन लो, तो मैं उससे स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूं और मैं बताता हूं क्यों. उनका ये लॉजिक था कि बच्चा थोड़ा सा प्रेशर में होगा और वो समझेगा
अपनी जिम्मेदारी, आई थिंक यही सब लोग बोलना चाह रहे हैं कि जिम्मेदारी समझेगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा, इंडिपेंडेंट होगा और वो मस्ती नहीं करेगा और अच्छे से ध्यान ला के पढ़ेगा, जिससे उसको लाइफ में अच्छा बनेगा। मैं ये बोल रहा Got disconnected, I think. Okay, we can. मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी ठीक है। Yes sir. सॉरी, आपने सुना था मैंने लास्ट क्या बोला? हाँ, you are saying कि नहीं लेना चाहिए, then reason या मतलब सब लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि बच्चा जिम्मेदार हो जाएगा, शायद सब लोग यही बोलना चाह रहे हैं, इसी वजह से उसको डिस्पाइट की पैसा है तब भी एजुकेशन लोन उसे लेना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ, बंदे के पास पैसा है, आपने जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए या जिम्मेदार बनाने के लिए आपने उसको 10 लाख का लोन दिलवा दिया, उसके बाद वो बच्चा अगले 5 साल तक जो वो कमा के एंजॉय करता, वो हर मंथ 20-20 हजार रुपए दिए जा रहा है, तो ये कहाँ की इंसाफी है अपने ही बच्चे के साथ? एज अ पेरेंट मैं बोल रहा हूँ, मैं कमा किस ले रहा हूँ एज अ पेरेंट कि मैं अपने बच्चे का बीटेक और एमबीए भी लोन पे कराऊं, तो मैं पैसे का करूं क्या? मतलब मैं क्या गाड़ी चलाऊं और बीवी पे खर्च करूं, दैट्स इट? क्या मेरी जिम्मेदारी बच्चे के ऊपर नहीं है? तो मैं तो ये सोचता हूं कि लॉजिकली इट डज नॉट मेक सेंस बिकॉज आप इंटरेस्ट दे रहे हो। दूसरा, आप बच्चे का 5 साल तक बच्चा, मतलब आई नो अ लॉट ऑफ पीपल इन माय रिलेटिव्स एज वेल एज माय फ्रेंड्स जो लोन ही दिए जा रहे हैं, वो कुछ खर्चा, मतलब मेरे जितना बंदा जो मेरे जितना कमाता था पेटीएम में, वो कुछ कर ही नहीं पाया क्योंकि उसका सारा सेविंग जीरो हो गया, डिस्पाइट कि वो लाखों कमा रहा था पर मंथ। तो ऐसे फायदा क्या है कि आप 10 साल नौकरी भी कर लिए ना, आपके पास घर है ना, आपके पास गाड़ी है ना, कुछ है आपके पास, आप रेंट पे दिए रह रहे हो, तो आई डोंट अग्री। सेकेंड, एजुकेशन लोन gives a platform to all students or all citizens of India to stand at one level. चाहे पैसा हो ना हो, you have right to education to the premium most colleges और जो IIM और IIT से भी आप पढ़ सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म देता है एजुकेशन लोन एज अ प्रोडक्ट। सो इसीलिए आई एम इन फॉर एजुकेशन लोन। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बराबर हो, कोई ये नहीं बोलेगा कि भैया राजा का बेटा राजा बनेगा। आज भिखारी भी है और अगर उसमें टैलेंट है तो तुम IIT से पढ़ो और फिर अपना जिंदगी एंजॉय करो, लाइफ में बढ़ा सौरभ जी, सीक्वेंस में मुस्कान, मेरा एक क्वेश्चन था इस पे ही। मेरा थोड़ा जो बोलने का गलत वे में समझा गया है सौरभ जी से। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वेल टूवर्ड फैमिली है, फादर को भी पता है कि मैं फी पे कर सकता हूँ, बेटे को भी पता है कि आई कैन पे द फादर कैन पे द फीस, बट स्टिल लोन लिया जाता है जस्ट फॉर शोइंग ऑन पेपर्स। नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आपको टैक्स बचाना है वो कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक हो गया, उस पे नहीं जा रहे हैं। अभी तो हो रहा है कि आप बच्चे को, सब लोग तो ये बोल रहे थे, मैं आपके पॉइंट पे नहीं बोल रहा हूँ, आई अग्री टू योर पॉइंट। मेरे बहुत लोगों ने ऐसा किया है टैक्स वेवर के लिए, लेकिन मैं मेन बोलना चाह रहा हूँ, लोग ये जैसे अभिषेक जनता ने ये कहा था कि जबरदस्ती का प्रेशर डालो ताकि वो अच्छे से पढ़ा कर सके, मैं उस पॉइंट पे बोलना चाह रहा हूँ। हेलो, यस अभिषेक बताओ। यस, सौरभ सर को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं और इनका हम एग्जाम्पल भी मतलब हर 2-3 दिन पे अपना घर में भी लेते रहते हैं कि पेटीएम से सर यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन सर ये एक चीज हम बोलना चाहेंगे, सारे स्टूडेंट आपके जैसा नहीं होते हैं। आपके जैसे 2-4-5% ही होते हैं कि एक स्टोर से आज 63 स्टोर पे चले गए। हम अपने मतलब स्पेशली हम अपने एक कॉलेज का बतला रहे हैं, जिस एक कॉलेज से हम पास आउट हैं। हम फील किए कि जिस स्टूडेंट का एजुकेशन लोन है और जिसका नहीं है, अप्रोक्स अपने बैच में तो पता चल जाता है कि कौन लिया है कौन नहीं लिया है, उनका तरीका ही चेंज हो जाता है। ये चीजें में देखें कि जो स्टूडेंट एजुकेशन लोन लिया है उसका सीरियसनेस और जो नहीं लिया है उसका, क्योंकि सारे स्टूडेंट एक जैसा नहीं होते हैं आपके जैसे, या 0.1% सक्सेस हमको लगता है कि जो भी हम 0.1% भी सक्सेस पाए हैं तो उसका एक पार्ट एजुकेशन लोन भी है, क्योंकि मेरे को भी फर्स्ट सेमेस्टर से ही प्रेशर था कि उस लोन को चुकाना है। और एक अच्छा चीज है, हम तो यही कहते हैं कि एजुकेशन लोन थोड़ा सा ही लीजिए, 25% ही लीजिए, 20% ही लीजिए, लेकिन आजकल के बच्चों को
प्रेशर देना बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो गया, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसा नहीं होते हैं। और सेकंड चीज कोई बोल रहे थे कि अमेठी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन लोन लेने का कोई मतलब नहीं होता है। मेरे ख्याल से कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो भी होता है ना, वो क्या बोलते हैं, स्टूडेंट से बनता है। एक कंपलसरी नहीं है कि कोई आईआईटी से पढ़ लिया तो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। मैक्सिमम लोग बनते हैं, और कोई छोटा कॉलेज से पढ़ा तो वो नहीं बन सकता है। कॉलेज उतना मैटर नहीं करता है। मेरे को भी जब हम कॉलेज में नहीं गए थे तो लगता था कि कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है कि ब्रांड वैल्यू के लिए, लेकिन अब लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप बड़ा कॉलेज से पढ़ रहे हैं तभी आप बहुत बड़ा बन सकते हैं, ऐसा मेरे को कुछ नहीं लगता है। अभिषेक जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। Muskan has been raising hand. Yes, Muskan, please finish your point, Muskan. यस सर। तो एक तो रवि सर ने बोला कि एजुकेशन लोन पे करने का कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, बच्चा जब जाए तब पे कर सकता है, ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। जॉब लगने के बाद विद इन 1 year यू हैव टू पे, मतलब 1 साल का आपको टाइम देते हैं, उसके बाद आपको पे करना, यू हैव टू स्टार्ट पेइंग। या एक्चुअली, और मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। वन ऑफ माय फ्रेंड है जिसने एजुकेशन लोन लिया था रिसेंटली, बट ड्यू टू इस एक्चुअली जब वो 2nd year ऑफ कॉलेज में थी, शी वांट टू स्टार्ट हिज ओन वेंचर, मतलब उसे खुद अपना कुछ स्टार्ट करना था, बट उसने नहीं किया सिर्फ इसी चक्कर में बिकॉज उसको एजुकेशन लोन पे करना था। एंड जस्ट बिकॉज अब अपना वो कुछ स्टार्ट करेगी तो आई थिंक वो पैसे वैसे आने में टाइम लग जाता है, एटलीस्ट 2-3 साल तो लग ही जाते हैं उस पे पहुंचने पे, तो इसलिए उसने अपना वेंचर स्टार्ट नहीं करा। और अभी अभिषेक सर ने एक बात बोला कि जहां से तुम पढ़ रहे हो मैटर नहीं करता, एंड आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में वो बहुत करता है मैटर। स्पेशली अगर तुम एजुकेशन लोन लेके पढ़ रहे हो तो जिस इंस्टीट्यूशन से तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हें कैसी जॉब प्रोवाइड कर रही है, वो बहुत ज्यादा करता है मैटर। सो दैट्स माय पॉइंट। Sure. Yes, Ravi ji, please. Okay, so immediately Yeah, I so will for answer. Ravi, for your information, what Muskan said is correct. हाँ, 1 साल के बाद आपका रिपेमेंट स्टार्ट हो जाएगा, जॉब लगा नहीं लगा, it doesn't matter. Correct. Yes, that is very valid point. Correct, absolutely right. लेकिन वो स्टार्ट होने के बाद ना यू कैन इंटरमिली यू कैन होल्ड योर एजुकेशन, जो रिपेमेंट आप कर रहे हैं, ठीक है। सी द पॉइंट इज कि इट्स स्टार्ट विथ 1 year, बट मेरा ये कहना है, ठीक है, इट्स अ गुड टूल टू यूटिलाइज। आप नहीं भी पे कर रहे हैं, व्हाट विल हैपन टू यू? आप नहीं भी पे कर रहे तो व्हाट विल हैपन टू यू? नहीं, वो गारंटी कोई देता है ना, यूजुअली पापा या कोई गारंटी देते हैं, और लोन जहाँ से इंटरेस्ट स्टार्ट कर देती है बैंक। दैट इज स्टार्ट कर देती है, और इट विल गोज ऑन, बट लेकिन आप अपना टाइम ले सकते हैं। यू हैव योर टाइम टू रीपे। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आई हैव टेकन 7 लाख एजुकेशन लोन, ओके, एमबीए में। मैंने सिर्फ अपना कैरियर में जो मुझे ईयरली बोनस मिलता था उससे मैंने एजुकेशन लोन अपना पे किया है। तो इट इज ऑल्सो एक टूल है। क्रेडिट कार्ड के अभी नेक्स्ट टॉपिक आएगा, क्रेडिट कार्ड। सो दिस ऑल लोन फैसिलिटी इज अ टूल विच यू कैन यूटिलाइज एट मैक्सिमम। ठीक है, वो पॉइंट में क्रेडिट कार्ड का जब डिस्कशन आएगा तो विल टेल यू कि हाउ यू कैन यूज क्रेडिट कार्ड एज अ टूल टू हैव योरसेल्फ एज अ फाइनेंशियली साउंड। Without any money, you can do a lot of things with credit card. Yeah, sure. So this is my perspective. Ki education loan itself is a tool to have a better education, which every student need to think of at least. Yes, rather than discussing on this, because see, from last 2-3 days we were discussing about the same things, education, and how you are going to expose yourself in terms of taking up the challenges. Saurabh is saying very valid point, but at the same time, does he not saying like, I will not expose my children to the vulnerability or maybe the challenges which he is going to face in the life? Why it is so, man? Should I answer? Okay, Saurabh, you can answer. Direct to you. मेरा ये पॉइंट है, आप लोगों ने बोला कि पैसा है तब भी आप एजुकेशन लोन दो और उससे वो थोड़ा सा जिम्मेदार बनेगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब बच्चे को पता है उसके बाप के पास बहुत पैसा है तो तब भी जिम्मेदार नहीं बनेगा, क्योंकि उसको पता है ना कि बाप इंटरेस्ट दे देगा, 10 लाख दे ही रहा है, 12 लाख दे देगा। तो लेकिन हैविंग सेड दैट, आई ऑल्सो अग्री,
कुछ लोग को ये जिम्मेदारी महसूस होगा, बट इट डज नॉट मीन कि आप बच्चे को जिम्मेदार बनाने के लिए मतलब अपना एक्स्ट्रा मेहनत की कमाई 2 लाख रुपए फेंक दो और उसके अगले 7 साल तक बेचारा बच्चा 20-20 हजार रुपए अपने जेब से देता रहे। मुझे लॉजिक नहीं समझ में आया। आपने जिम्मेदार तो बना दिया 2 महीने 2 साल, नहीं, और उसके बाद वो 5 साल वो परेशानी में बिता रहा है, वो तो गलत है ना। सर दैट इज द पॉइंट। इन एजुकेशन लोन जो इंटरेस्ट रहता है वो काफी कम रहता है इन कंपेयर टू पर्सनल लोन एंड अदर थिंग्स, ठीक है। सो जो जिस पीरियड में आप रीपे कर रहे हैं ना, दैट इज गुड एनफ टू रीपे इट इन अ वे लाइक मैं अर्न कर रहा हूँ तो रीपे कर रहा हूँ, सो विच इज वेरी वैलिड। आप एक्स्ट्रा तो नहीं पे कर रहे हैं, यू आर यूजिंग द मनी पावर ऑफ टाइम। So Saurav, I think I will just add a bit. I think अभिषेक ने जैसे बोला कि आप 25% ही लीजिए, 20% ही लीजिए, 10% ही लीजिए, just take a little bit, just to bring the sense of responsibility at least, instead of just giving a like a free thing, पूरा मतलब completely free. तो ये डिपेंड करेगा आई थिंक पेरेंट टू पेरेंट, थोड़ा सा लेंगे ज्यादा लेंगे, या जैसे वो टैक्स सेविंग का वाला भी चीज आया एक, और आई डोंट नो, आई मीन इट्स ऑल अबाउट कैश फ्लो इफ यू थिंक अबाउट इट। आई थिंक अभी थोड़ा सा और इसको आते हैं, आई थिंक ये जस्ट एजुकेशन लोन पे वैलिड नहीं है कैश फ्लो वाला चीज। आई थिंक दिस कैन बी एक्सप्लोर्ड इन अ लॉट ऑफ आई मीन अंडरस्टूड इन अ लॉट ऑफ वेज। यस मिस्टर हरी, प्लीज आपका कमेंट। Yes, regarding this admission like institute, so I feel कि if you are selected in premier institutes, और अगर आपके पास जरूरत means you are eligible, like आपने आपका criteria fulfill कर दिया है, you cracked the IIT or you cracked the GRE and you're getting admission in some premier B school abroad, but you don't have the cash at that time, तो उस समय education loan लेना is very valid. You can go ahead with the education loan. But अदर चीजें, जैसे मैं थोड़ा सा सौरभ से भी एग्री करूंगा कि unnecessarily creating pressure on स्टूडेंट्स और बच्चों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए आप लोन लोगे, तो फर्स्टली तो we should judge whether it is like profitable or whether it is liable or not, that we can go ahead with the loan. और yeah, but thing is कि जब जॉब स्टार्ट होता है, so at that time there is another pressure on the candidate कि ऑफिस का प्रेशर होगा, जॉब का प्रेशर होगा. Apart from that, he might not be living with the parents. He might have to shift to a new city. तो ऐसे situations में प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, but means बच्चे के ऊपर. He has to repay the loans. He has to listen to the bosses. He has to maintain the business. ये सब चीजें आ जाती है पिक्चर में. So वो सब ख्याल में रखते हुए हमको डिसीजन लेना चाहिए whether education loan is required or not at that time. अगर if you can pay, then it is very good that you pay from your father's salary or father's saving, and you can maybe whenever you have surplus, or maybe when you want, you can return it back to your father. That's what I want to say. Yes, sir, please. तो मेरा ऐसा कहना है कि एजुकेशन लोन के प्रोज एंड कॉन्स हैं. तो इफ यू थिंक कि यू कैन टेक इट एंड इट्स इम्पोर्टेंट, आपके करियर में बूस्ट देगा, आपके लर्निंग में, ग्रोथ में, तो लेना चाहिए. एंड लाइक ऑल लोन्स, आपको ये भी सोचना चाहिए लेते समय कि मैं उसको चुकाऊंगा कैसे, कौन चुकाएगा, मैं चुकाऊंगा या मेरे माँ बाप चुकाएंगे या बैंकरप्ट या मैं डिफॉल्ट करूंगा. एक इम्पॉर्टेंट चीज, एक अच्छा एग्जांपल आई थिंक मुस्कान जी ने दिया था कि इंडिया के जो प्रीमियर कॉलेजेस हैं, IITs, IIM से बहुत सारे NITs भी, या इवन एक्सेलर, IFMS, बहुत सारे जो टॉप कॉलेजेस हैं, तो उन कॉलेजेस का फीस काफी बढ़ते जा रहा है. इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की बात स्पेसिफिक एग्जांपल लेता हूँ, तो ISB ने एक बहुत अच्छा इंडिया में एक रिवॉल्यूशन लाया जो कि जरूरी था. मैं IIM अहमदाबाद में पढ़ रहा था, सेकेंड ईयर में था, तो मेरे से सलाह लेकर एक मेरे फ्रेंड ने दुबई से, मिडिल ईस्ट से, कहीं से एडमिशन लिया ISB. उसने कहा ISB से ऑफर लेटर आया है और नया इंस्टीट्यूट खुल रहा है, ये 2000 में खुला था ना, 2002 में, तो मैं लूं कि नहीं लूं, क्योंकि इट्स नॉट एन IIM उसका हुआ नहीं था, मैं क्या करूं. तो मैंने कहा कि देखो, जिस तरह की इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं ISB के फाउंडेशन में, बहुत बड़े
बड़े लोग जुड़े हुए हैं। इंडिया के जो टॉप बिजनेस हाउसेज जुड़े हुए हैं, काफी बड़े बड़े ब्रांड जुड़े हुए हैं। सुमंत्रा घोषाल जो उसके डायरेक्टर हैं, प्लस उनका जो पार्टनरशिप जो था कि किलॉग और बहुत सारे टॉप यूनिवर्सिटी, वॉटन, बहुत सारे टॉप यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप है। तो इससे ग्लोबल यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। आईआईएम का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था कि गवर्नमेंट का था, वही सबसे बड़ा वीकनेस भी था। वीकनेस ये था कि आईआईएम को अब चेंज हो गया, लेकिन पहले क्या था कि सालों तक आईआईएम एक जंजीर में बंधा हुआ था। कितना भी डायरेक्टर या इंस्टीट्यूट कुछ भी करना चाहे, बट मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंडर में आते थे अल्टीमेटली। जो बोर्ड्स होते हैं आईआईएम्स के, सारे आईआईएम्स के बोर्ड्स में एचआरडी मिनिस्ट्री का कोई ना कोई रहेगा। बस जिस स्टेट में है वहाँ का लोकल चीफ मिनिस्टर भी आपके बोर्ड में रहेगा। तो कभी कभी इसका फायदा भी होता है, लेकिन इनिशियली क्या हुआ कि बहुत सालों तक आईआईएम्स अपने कोर्सेज को, अपने फीस स्ट्रक्चर को अपग्रेड नहीं कर पाए। आईएसपी ने इवोल्यूशन क्या लाया कि आईएसपी पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी था, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। तो आईएसपी ने इंटरनेशनल पार्टनरशिप एस्टैब्लिश किया बिगनिंग से। आज आईआईएम का भी है पार्टनरशिप पूरी दुनिया में, लेकिन आईएसबी ने बिगनिंग था। और प्राइवेट सेक्टर होने के चलते ज्यादातर जो एलुमनाई होते हैं किसी भी मैनेजमेंट कॉलेज के, वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स लेते हैं। तो उनके लिए इंडस्ट्री से ज्यादा अलाइनमेंट था उनका, जो कि हमारे जो पुराने जो एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन आईआईएम्स को, इवन आईआईटीज के साथ भी सेम चैलेंज था कि आईआईटीज और आईआईएम का एक ही बड़ा प्रोडक्ट है, और वो है उनके एलुमनाई। आज उनके प्रोफेसर्स, उनके डायरेक्टर्स, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनका बहुत माइनर रोल होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव रोल होता है एक्चुअली उनके इंस्टीट्यूट के चलने में। लेकिन आईआईटी की एलुमनाई ने आईआईटी को इतना बड़ा ब्रांड बनाया, आईआईएम के एलुमनाई ने आईआईएम को इतना बड़ा ब्रांड बनाया। और अभी लास्ट मंथ ही, कुछ वीक्स पहले, आईआईएम अहमदाबाद में एक मीटिंग हुई थी, सारे एलुमनाई को बुलाया गया था और आए थे। हर्षा भोगले से लेकर जितने भी बड़े बड़े जो एस्टैब्लिश फेमस आईआईएम अहमदाबाद के एलुमनाई, और उन्होंने 100 करोड़ रुपया का फंडिंग डोनेट किया। मेरे भी कुछ मेरे अमीर 2-3 क्लासमेट्स, उन लोगों ने बड़ा बड़ा अमाउंट डोनेट किया। और उन्होंने फंड विजन सेट किया कि हम लोग अब 100 करोड़ के जगह हम लोग इसको 500 करोड़ या 1000, काफी बड़ा उन्होंने एम्बिशियस टारगेट सेट किया एलुमनाई ने। तो वो बहुत अच्छा पार्ट लगा कि इंस्टीट्यूट हैव टेकन चार्ज ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन में सबसे ज्यादा किसी का स्टेक इन्वॉल्व होता है स्टूडेंट का। प्रोफेसर्स आते जाते रहेंगे, डायरेक्टर्स आते जाते रहेंगे, फैकल्टी स्टाफ भी चेंज कर सकता है, लेकिन इंस्टीट्यूट के लिए इट्स अ लाइफ लॉन्ग ब्रांड। आप एमईटी के हो, कि आईआईएम के हो, कि आईएसबी के हो, कि एक्सएलआई के हो, वो आप लाइफ लॉन्ग वो ब्रांड को, बैच को कैरी करना पड़ेगा आपको। तो उनका इन्वॉल्वमेंट जब से बढ़ता है, जिस इंस्टीट्यूशन में बढ़ जाता है, उस इंस्टीट्यूशन में काफी अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी होती है, चाहे वो प्लेसमेंट में हो, चाहे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ये भी स्टार्ट किया है कि अपने इंस्टीट्यूशंस में अपने पुराने स्टूडेंट्स को भी, जो कि काफी इंडस्ट्री में काफी एस्टैब्लिश हो चुके हैं, उनको भी वो लोग गेस्ट फैकल्टी के रूप में बुलाते हैं, और या एडजंक्ट फैकल्टी, या अलग अलग टर्म्स है। तो वो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में हो रहा है कि गवर्नमेंट का रोल कम हो गया है, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया है। दैट इज अ वेरी वेरी गुड इंस्टीट्यूट। एंड आईआईटीज में तो बहुत ज्यादातर जो आईआईटीज का आजकल जो खर्च चल रहा है, ज्यादातर जो पैसा था बहुत ही सब्सिडाइज था, तब भी था, आज भी है। लेकिन आज एलुमनाई का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा पार्ट है। और किसी एलुमनाई ने एक लैब स्पॉन्सर कर दिया, किसी ने एक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट खोल दिया, आई नो आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी बॉम्बे में। तो वो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है कि स्टूडेंट्स को और एलुमनाई को इन्वॉल्व कीजिएगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो इंस्टीट्यूशन को वो लोग काफी ग्रो करेंगे और गवर्नेंस भी अच्छे से चलाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। यस सर, प्लीज। मैं बस किसी ने कहा था कि बहुत कम इंटरेस्ट होता है या बहुत कम पेमेंट होता है, तो मैंने थोड़ा सा मैथ्स किया है। एमबीए में यूजुअली आज के टाइम पे 10-12 लाख रुपए का खर्चा है। तो 12 लाख का अगर लोन होता है और हम 5 साल में रीपे कर रहे हैं विदाउट जीरो इंटरेस्ट पे, आई नीड टू पे 20,000 पर मंथ। 5 साल तक दूंगा, तब जाके मैं 12 लाख रुपए पे कर पाऊंगा। 20,000 इज अ बिग अमाउंट एक फ्रेशर के लिए। जब वो निकलता है ना,
तो उसके लिए वो कमाता ही 20,000 है, तो 20,000 में 20,000 दे देगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बस ये एक पॉइंट मुझे बोलना था। Yeah, so let me come to one point which Muskan said, and I Uh, have seen a lot. Yes, Muskan, please. You want to say? मुझे अतुल सर से एक चीज पूछनी है। क्या आईएम्स को गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं मिलती है? आईएम को गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती थी, बट इन द लास्ट कुछ साल में आईएम्स ने गवर्नमेंट को बोल दिया कि हमें अब आपकी फंड की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट को आईएम को एस्टैब्लिश किया गवर्नमेंट के फंडिंग में। जैसे मैं आईएम अहमदाबाद का एग्जांपल देता हूँ, तो आईएम अहमदाबाद को एस्टैब्लिश किया था क्या नाम है भाई, और गुजरात के चीफ मिनिस्टर और विक्रम साराभाई का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, जो इंडिया के जो स्पेस साइंटिस्ट और थे। तो आईएम एस्टैब्लिश हुआ था गवर्नमेंट के फंड से, लेकिन लास्ट 4-5 साल में आईएम्स ने गवर्नमेंट को पुराने आईएम्स, नए आईएम्स को आज भी शायद जरूरत है। तो आज आईएम मान लीजिए कि कोई नया आईएम खुला है, जम्मू में खुला है, या आईएम खुला है सिरमौर में खुला है, तो नए आईएम्स को शायद हो सकता है कि आज भी गवर्नमेंट के फंड की जरूरत पड़ती होगी या पड़ती है। लेकिन जो पुराने आईएम्स हैं, अहमदाबाद, कलकत्ता, बैंगलोर, इन लोगों ने गवर्नमेंट, लखनऊ, इन लोगों ने गवर्नमेंट को बोल दिया है कि हमें आपकी फंड की जरूरत नहीं है। और हम लोग, उनका फंड इतना, कॉर्पस इतना अच्छा एस्टैब्लिश हो गया, फीस भी बढ़ा दिया है, वो भी एक कारण है कि हम स्टूडेंट के फीस से और हमारे फंड से हम लोग अपना खर्चा चला सकते हैं। इसका मेन रीजन था कंट्रोल, कि आईएम्स को वो जो गवर्नमेंट का सफोकेटिंग कंट्रोल था, तो वो अब नहीं करना पड़ेगा। तो जो कर सकते थे उन लोगों ने गवर्नमेंट से लेना बंद कर दिया, जो नहीं कर सकते हैं वो अभी भी बेचारे झेल रहे हैं। जैसे कुछ नए आईएम साथ में इन्वॉल्व रहा हूँ। आईएम बोधगया जब बिहार में एस्टैब्लिश हुआ था, तो बिहार गवर्नमेंट ने उसको इतना ज्यादा कंट्रोल के चलते बर्बाद किया। आईएम कहते हैं वहां पे जो भी नए आईएम्स है ना, उनमें लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स ने काफी ज्यादा उनको ट्रबल किया, कि स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर बोर्ड में रहेंगे, कोई जो एचआरडी मिनिस्टर जो स्टेट का है वो करेगा, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफी ज्यादा हो जाता है। पुराने आईएम्स इस पोजीशन में पहुंच गए कि उनको कोई पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं कर सकता है गवर्नमेंट, क्योंकि पैसा नहीं ले रहा। आपके जिसके पास पैसा है, वो जो भी पैसा दे रहा है वो डिसीजन लेता है, राइट? तो अब जो पुराने आईएम्स ने, चाहे ओल्ड फोर ने एटलीस्ट मना कर दिया है कि हमको गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं चाहिए, नहीं लेते हैं वो लोग। Yes, Okay, Sejal, sir. please. Sejal, you want to say something? Yeah. यस सर। अतुल सर, आईआईएम में भी बच्चों की बैक आती है? Backlog. हाँ, नहीं हाँ, मेरे क्लास में, मैं एक नाम नहीं लूंगा, आई रिमेम्बर कि बैक भी आती है, बहुत सारे लोग, कुछ लोग तो सुसाइड भी करते हैं। आईआईटी में ज्यादा, आईआईएम में थोड़ा कम। लेकिन आई रिमेम्बर कि मेरे फर्स्ट टर्म के बाद ही बचपन से टॉपर है, ब्राइट स्टूडेंट है, फैमिली, फ्रेंड, मोहल्ले, हर जगह फेमस, कितना स्मार्ट है, कितना स्मार्ट है, 10th में टॉप किया, वहाँ टॉप किया, वहाँ टॉप किया। और जब आईआईएम में गए तो उनको इतना ज्यादा सेटबैक लगता है, मुझे तो लगा था, बहुत ज्यादा लगा था, कि मुझे लगा कि मैं यहाँ पे टिकूंगा कैसे, मतलब इतने स्मार्ट लोग हैं, मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। तो बहुत सारे मैं फॉर्चुनेटली मैं बच गया, मैं ऑब्वियसली टॉपर्स में से नहीं रहा, मैं किसी तरह से पास होकर निकल गया। लेकिन बहुत सारे लोगों को बैक भी आता है, और बहुत सारे लोगों ने ड्रॉप आउट भी किया है, आईआईएम से करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को निकाला भी जाता है, फेल करके निकाला भी जाता है विद इन द फर्स्ट ईयर। ओके सर, तो ये बात पूछने का मेरा सिर्फ यही पॉइंट था कि आईआईएम में भी लोगों की बैक आती है, और मे भी ऐसा भी होता होगा कि उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है। तो मैं ये मानती हूँ कि कुछ डिग्रीज में पर्सनल कैपेबिलिटीज भी बहुत मैटर करती है। सो लाइक आप किसी भी नॉर्मल कॉलेज से एमबीए करके या कोई भी डिग्री यूज करके आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, क्योंकि काइंड ऑफ हर कॉलेज में सिखाते तो सेम चीज ही है, लेवल का डिफरेंस आ जाता है। और अगर आपकी वो कैपेबिलिटीज हैं तो यू कैन डू एनीथिंग विद दैट डिग्री। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जो अभी एमआईटी की बात हुई थी, ये मेरा उसका आंसर था। तो मैं इस पे कमेंट करूं सिजल, कि एमिटी यूनिवर्सिटी में मैंने बहुत बार, एमिटी यूनिवर्सिटी जो नोएडा का मेन कैंपस है, वहाँ की एक डीन है, बहुत बार जब भी मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे बुलाया जाता है, तो मैं जाकर गेस्ट लेक्चर्स लिया है मैंने बहुत बार।
तो एमिटी यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफी अच्छा कैंपस है, सब कुछ है, लेकिन हाँ एक डिसएडवांटेज है एमिटी का कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जो बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट जो है उनके पास सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे आपके पास भी अगर कैट क्लियर कर लेते हो, आपको IIM अहमदाबाद का ऑप्शन है या ISB का ऑप्शन है या एक्सेलराई का ऑप्शन है, तो फिर आप वो लोगे, आप एमिटी नहीं लोगे। एमिटी बहुत सारे लोगों ने एंट्री बैरियर बहुत लो है एमिटी का, कि आपके पास पैसा है तो आप एमिटी में एडमिशन ले सकते हो। तो वही उनका डिसएडवांटेज भी है कि एडमिशन तो ले सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन ability to attract the best quality of faculty, ability to get the best quality of jobs, वो थोड़ा hard है। तो क्योंकि इंडस्ट्री में भी सबको पता है कि कहाँ का मतलब बेसिकली जो MBA कॉलेजेस जो इंडिया के हैं या जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस, तो उनका सबसे बड़ा जो रोल होता है ना, दे आर एंट्री पॉइंट, वो गेट कीपर है कि इंडिया की आबादी इतनी बड़ी 1.3 बिलियन है, उस 1.3 बिलियन के स्मार्टेस्ट ऑफ द स्मार्टेस्ट लोगों को आपको सिलेक्ट करने के लिए कौन सा एग्जाम है, तो वो IIT है, वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम, इज टफर देन हार्वर्ड एंड टफर देन MIT और स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, एनी प्लेस इन द वर्ल्ड। IIT का एंट्रेंस, JEE जो है सबसे टफ एग्जाम है। तो बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट को ऑन मेहनती, केवल बेस्ट ब्राइटेस्ट में कि कितने लोग सालों साल मेहनत करते हैं, पूरा फैमिली जी जान लगा देता है IIT में क्लियर कराने के लिए, JEE में। सिमिलरली उसी बेस्ट ऑफ द ब्राइटेस्ट में कुछ लोग बाद में MBA के लिए जाते हैं, तो IIM जाते हैं और कहीं जाते हैं। तो वो जो एंट्री बैरियर जो है ना, दैट इज द बिगेस्ट, जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स काफी अच्छा हो जाता है एंट्री में। फिर एंट्री करने के बाद जो 2 साल में आप टीचर्स से कम सीखते हो, उससे ज्यादा अपने क्लासमेट से सीखते हो। आप हर केस स्टडी में या ग्रुप डिस्कशन में या प्रोजेक्ट या हॉस्टल में भी आप, तो मुझे याद है कि मैं जब IIM अहमदाबाद में जब फर्स्ट टाइम जो मैंने सरवाइव कर गया, तो बहुत कॉन्फिडेंस आया कि मेरे फ्लोर में ये बंदा ये IIT का टॉपर था, ये मैं फ्लोर में जो जिस हॉस्टल में था, D1807, चेतन भगत का भी वही रूम था, इसलिए मैं याद रखता हूँ। तो जिस फ्लोर पे था, तो 10 लोगों में से 8 लोग इंजीनियर्स, उसमें से 8 में से भी 5 IIT के। तो मुझे लगा कि यार मैं कहाँ आ गया, मैं तो पटना के AN कॉलेज से आया हूँ, अननोन कॉलेज का अननोन स्टूडेंट। तो काफी मेरे को काफी डिप्रेशन और टेंशन हुआ। लेकिन जब मैं बातचीत करने लगा क्लास के बाद में मैं भी कर सकता हूँ, मैं इनके साथ कोप अप कर सकता हूँ, तो फिर कॉन्फिडेंस भी आया कि मैं तो इनके साथ, मुझसे अगर कोई एक IIT का मेरा एक फ्रेंड है, वो आके पूछा कि यार घोटाला, मेरा निकनेम घोटाला था, घोटाला यार ये कैसे होगा, और मैंने उसको कुछ क्वांट टाइप के सब्जेक्ट में हेल्प कर दिया, तो मेरा कॉन्फिडेंस सोचिए कहाँ स्काई हाई चला गया। क्या ये IIT दिल्ली का था, IIM में है, मतलब कितना स्मार्ट, और मैं इकोनॉमिक्स ऑनर स्टूडेंट, और मैं इसको मैथ्स क्वांट टाइप के सब्जेक्ट में इसको हेल्प कर पा रहा हूँ, तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो मैंने कहा एक पहले काफी डिप आया, बट जब एक बार मैंने देखा कि नहीं आई कैन मेक इट, देन क्या बोलते हैं, इफ यू कैन मेक इट हियर, न्यूयॉर्क के लिए फेमस गाना, बट IIT के लिए, IIM के लिए फेमस है, इफ यू कैन मेक इट हियर यू कैन मेक इट एनीवेयर। वो वाला जो कॉन्फिडेंस आता है किसी टॉप यूनिवर्सिटी में जाने का, वो आपको सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड यूनिवर्सिटी में शायद नहीं आ पाएगा। Yes, Nandan, please. I would like to ask Atul sir. Atul sir, for the citizens over the students over US for doing their BS, there will be any loans over there for the students over there? Yes, it's all mostly education US का loan based ही होता है, and most of the times what students do, families also encourage and support that. If you're not from a very rich family, so most students even from school days they are doing some part-time job, कोई मैकडोनल्ड्स और रेस्टोरेंट में, फास्ट फूड चेन में, या कहीं भी वॉलमार्ट में, टारगेट में काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स में ये कल्चर यहाँ इंकरेज किया जाता है फैमिलीज के द्वारा भी और सबके, कि यू स्टार्ट सेविंग मनी फॉर योर एजुकेशन। तो आप कहीं पे MBA के लिए तो मस्ट है, MBA कोई ये नहीं एक्सपेक्ट करता है कि पेरेंट्स के पैसे से पढ़ेगा, सब लोग चाहते हैं कि मैं नौकरी करूंगा कुछ साल, उसके बाद पैसे बचा कर फिर MBA करूंगा। बट अंडर ग्रेड जो आपने बोला BS में, तो BS में भी BS या BA में भी, तो BS BA में भी ज्यादातर टाइम लोग या तो लोन से ले पढ़ते हैं या अपनी सेविंग या पार्ट टाइम जॉब वगैरह के थ्रू करते हैं। ज्यादातर लोग जो इंडिया से आते हैं MS के लिए आते हैं US, तो वो लोग जो MS आते हैं तो वो लोग जॉब करते हैं। बहुत सारे लोग
मैं जानता हूँ कहानी, कहीं जैनिटर का भी काम किया, कहीं ड्राइवर का भी काम किया, उस पैसे से वो लोग अपना पढ़ाई कर, प्लस साथ में उनको एक ये भी मिल जाता है, किसी प्रोफेसर के अंदर में उनको क्या बोलते हैं उसको, वो होता है असिस्टेंट, टीचिंग असिस्टेंट। तो उस तरह के जॉब्स कर करके, कोई कोई वॉलमार्ट में जॉब करके, कहीं की जॉब करके, या इवन टैक्सी चला के भी, जैसे भी स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अर्न दे पे देयर ओन फीस, अनलेस बैंक से लोन मिल जाए तो वो भी एक तरीका है। बैंक से लोन भी, ज्यादातर लोग लोन भी लेते हैं, हायर एजुकेशन के लिए भी लेते हैं, और इवन कॉलेज एजुकेशन के लिए लेते हैं। स्कूल एजुकेशन के लिए आई डोंट नो कोई लोन लेता है। Only the school education is free from the government, right? School education is 100% free. पूरे यूएस में all schools are free. Public schools, private school बहुत पैसे वालों के लिए होता है तो वो पेड होता है, but public schools का quality overall काफी अच्छा होता है, तो ज्यादातर all schools are 100% free. Okay, thank you. So coming to the next question, which Muskan gave example, this education loan, is it killing entrepreneurship? So अगर कोई बच्चा, if any student wants to start entrepreneurship right from the college, let's say, he or she knows that, let's say from the B school, for example, I think B school have more education loan people, I think, than undergraduate, and also a higher amount, because like let's say IMs and all, 20-25 lakhs का loan हो जाता है at least, और 2 साल और। तो now like सौरभ ने जो calculation दिया है कि 10 लाख का ही है तो 20,000 का आता है 5 साल का। Now if I go to 20 lakhs, 25 lakhs, becomes like 40-50,000 EMI kind of thing for next 5 years at least. Now if somebody has to pay an EMI of this much amount for the next 5 years or whatever number of years, depending on where they are doing things, isn't that discouraging them from taking a lot of risk? It's actually kind of like a chain on their legs and hands, that okay, now you have to earn and you have to repay the loan before you can become fully independent and maybe start your own venture or do whatever you like kind of. So ये जो do whatever you like वाला stage है, तब तक नहीं आएगा जब तक आपका education loan clear नहीं होता है। At least अब यहाँ पे parents भी आते हैं, अगर parents help कर पाए तो ठीक है, but still, I mean, if it's a huge amount, even parents won't be able to help for a lot of cases, right? So ये सारे premium institutes have a tie-up with this banks and all, and most of them get collateral free loan, but isn't this also a trap for the next 5 years, not to let them start their own venture or like live freely kind of thing? और इसमें एक और चीज मैं ऐड करता हूँ, people who go to foreign also have the same problem. Let's say if somebody is going to Harvard or MIT or whatever for their Stanford for their MBA, 1 year या 2 साल जो भी है, या any other foreign institute, INSEAD. So INSEAD का fees is like 80 lakhs roughly 1 year. Now if somebody is paying that 80 lakh and let's say out of that 80 lakh 80% or even 50% is a loan, it becomes a huge amount which is a EMI every month. Now the person has to work abroad, क्योंकि इंडिया में probably they may not really find a job that will pay them to an amount which can actually clear the EMIs. So this becomes a huge trap for them that now अगर जैसे US का अगर बात करता हूँ तो US में क्या होता है कि people start working and then they are given this green card offer that 5 साल 10 साल रह गए तो कंपनी बोल देगी कि we'll sponsor your green card stay. Now people take that green card and because of that it becomes a trap after trap after trap after trap. Ultimately 10 साल जब तक education loan clear हुआ वो green card वाला या PR public जो PR बोलते हैं बहुत सारे कंट्रीज में, ठीक है, परमानेंट रेसिडेंट, यूएस में ग्रीन कार्ड बोलते हैं, ग्रीन कार्ड इक्विवेलेंट इज PR, जब तक वो इंडिपेंडेंट हो पाते हैं लोग तब तक they are too used to that culture now. They are so used to that convenience, that convenience store है, ये है वो है, सटासट सब कुछ हो जा रहा है. Now it's very hard for them to come back to India. So maybe you can ask from Atul sir only, do you
agree to this, Atul sir? What do you think? I completely agree with you, विशाल, कि ये जो वीजा वाला जो कंस्ट्रेंट है ना, और जो आपने पीआर की बात की, ग्रीन कार्ड की, ये बहुत बड़ा कभी कभी चैलेंज निकल के आता है. एंड अभी रिसेंटली कोविड क्राइसिस में अभी आप लोगों ने न्यूज सुना होगा कि अचानक अब तो क्राइसिस था सॉल्व हो गया. ट्रम्प ने बोल दिया था कि जो स्टूडेंट्स हैं, बाहर के जो स्टूडेंट हैं, उनको अब लोन पेपर उनको वापस भेज दिया जाए. लेकिन फिर MIT और हार्वर्ड ने सू करके और केस जीत लिया, तो अब उनको नहीं जाना पड़े वापस, जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे आए थे. तो स्टूडेंट वीजा पे आने का एक रिस्क ये है कि ज्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं तो आफ्टर पॉइंट लोन है या खुद के पैसे से आए, दे मैनेज टू पे इट बैक. लेकिन कभी कभी जॉब नहीं लगती है तो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अनबेरेबल हो जाती है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए. एक एग्जांपल देता हूँ मैं बिना नाम लिए, अपने क्लासमेट का. IIM अहमदाबाद से मेरे साथ क्लासमेट था, काफी अच्छा था फिनेंस में. हमने साथ में जी कैपिटल में हम दोनों ने समर इंटर्नशिप भी की थी. बट उसको बाहर का शौक था, तो आफ्टर डूइंग एन MBA फ्रॉम IIM अहमदाबाद, स्टिल ही डिड अनदर MBA फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल. कर लिया उसने. उसके बाद उसके लाइफ में एक ट्रेजेडी हुई. ट्रेजेडी नहीं, मतलब कि इंटरेस्टिंग एपिसोड हुआ. उसको उस जमाने में लीमन ब्रदर्स था. लीमन ब्रदर्स में उसको इंटर्नशिप लगी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में. अब इंटर्नशिप लगी किसकी? तो उसका जो मैनेजर था वो क्लासमेट था. तो समझ लीजिए कि जो क्लासमेट 2 लाख का फीस देकर आया था और वो मैनेजर बना हुआ है, और जिस क्लासमेट ने 2 लाख की फीस के बाद फिर से हार्वर्ड में 2 साल पढ़ाई करके और लाखों रुपए खर्च किए और फिर आके अपने ही क्लासमेट के अंदर काम करना पड़ा. हाँ, तो बट ये तो मैंने केवल डार्क साइड बताया. बट पॉजिटिव साइड ये है कि द सेम क्लासमेट जो आज उसके इंटर्नशिप में था, लेकिन स्मार्ट आदमी था, ड्रिवन था और ये था. तो वो हर आदमी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आती है, जरूरी नहीं है. बट उसके बाद उसको फाइनेंस में इंटरेस्ट था, रियली गुड एट फाइनेंस. तो उसने बाद में वो अपने किसी प्राइवेट इक्विटी फर्म में, वेंचर कैपिटल फर्म में ज्वाइन किया. अच्छा कर रहा है, ही इज डूइंग रियली वेल इन हिज करियर. तो वो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो वो रिस्क लेने वाले पे डिपेंड करता है, डिसीजन में लेगा क्या, हाउ मच ऑफ रिस्क यू आर विलिंग टू टेक एंड हाउ मच ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड सेटबैक्स यू आर विलिंग टू अफोर्ड. दैट गाय जो मेरा क्लासमेट है अभी, ही इज डूइंग रियली वेल. वो एक समझ लीजिए कि एक वेंचर कैपिटल प्राइवेट इक्विटी फर्म में पार्टनर है, अच्छा कर रहा है, अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहा है. शादी भी उसने कर ली और काफी वेल सेटल्ड इन लाइफ है. लेकिन उस पीरियड में उसको वो फेज जो उसका हुआ होगा, जब कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से 2 साल MBA करने के बाद, सेकंड MBA करने के बाद, जब उसको प्लेसमेंट प्रोसेस में उसको लगा होगा कि मुझे फिर IIM वाले ही अपने के अंदर करना पड़ेगा. प्लेसमेंट में थोड़ा एक और प्रॉब्लम होता है, जो भी US की यूनिवर्सिटीज में या इवन NCERT हो या जो भी टॉप बाहर की यूनिवर्सिटीज में, कि टाइम लगता है प्लेसमेंट में. एंड टाइम लगता है बाय चॉइस भी एंड बाय डिजाइन आल्सो. बाय चॉइस क्योंकि वहाँ IIM वाला या इंडिया के MBA कॉलेजेस वाला हाल नहीं है कि आपका 3 दिन के अंदर या 1 सप्ताह के अंदर प्लेसमेंट हो जाएगा. यहाँ पे होता है कि 3 से 6 महीना का टाइम पीरियड होता है. तो वो पीरियड थोड़ा सा स्ट्रेसफुल पीरियड होता है. उसका एडवांटेज ये होता है कि पीपल मेक द इन्फॉर्म्ड चॉइसेस. ये नहीं होता कि प्रेशर में कि मुझे जल्दी से डिसाइड कर लो, टेक इट और लीव इट. तो गोल्डमैन और गूगल और 2 ऑप्शन है, कौन लेना. तो वो बहुत रश डिसीजन होता है. यहाँ पे लोग, स्टूडेंट्स भी, जो एलुमनाई जो किस टॉप यूनिवर्सिटीज के यहाँ के, और जो कंपनीज, वो दोनों आपस में लंबा डेटिंग पीरियड होता है. काफी समय तक मिलते हैं, बात करते हैं, मतलब कि कोटिंग पीरियड या डेटिंग पीरियड बोलते हैं. एंड ओवर पीरियड ऑफ फ्यू मीटिंग्स देन दे डिसाइड कि हाँ, अब मुझे इस कंपनी में ज्वाइन करना है, अब मुझे गोल्डमैन सैक्स में ज्वाइन करना है, या मुझे मैकेंजी ज्वाइन करना है. तो वो जो डेटिंग प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है US का या इवन UK एंड बाकी जगह. तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि लोग जल्दी में डिसीजन नहीं लेते हैं. पीपल कैन मेक अप देयर माइंड्स. दोनों साइड से फिटमेट भी हो जाता है कि एम आई सूटेड फॉर अ फिक्स्ड इनकम रिसर्च जॉब और एम आई सूटेड टू अ कंसल्टिंग जॉब इन मैकेंजी और बूज एलन वगैरह. तो आई थिंक दोनों के अप्स एंड डाउन्स है. आई होपफुली कि मैंने दोनों एस्पेक्ट कवर कर दिया. अनलेस किसी क्वेश्चन हो. तो क्वेश्चन ये, आई थिंक सौरव कैन आंसर मे बी, कि अगर आप EMI में फंस गए, अपना EMI का पैसा आप दे रहे हैं जॉब के थ्रू, आप
अपना स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं इस केस में? सौरभ, व्हाट डू यू थिंक? देखिए, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि स्टार्टअप करने के लिए आपको स्टार्टिंग में पैसा ज्यादा चाहिए नहीं। नहीं, बट ईएमआई तो लग रहा है ना एजुकेशन लोन का, वो तो हाँ, है आपका वो एक डिसएडवांटेज होता है कि आपको अपने जेब से स्टार्टअप में भी पैसा डालना है और ईएमआई भी डालना है। तो वो एक है, क्योंकि जब मैं स्टार्टअप शुरू कर रहा था तो आई वाज लुकिंग फॉर को फाउंडर्स, और उस टाइम पे आई हैड फ्यू वेरी गुड फ्रेंड्स एज माय करंट, जो मेरा करंट अभी को फाउंडर, उससे ज्यादा बहुत करीबी दोस्त थे, लेकिन वो मेरे साथ नहीं कर पाए बिकॉज दे हैड सर्टेन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। तो उनका लोन लेकर किया था, ईएमआई था, प्लस उनके और भी फाइनेंशियल उनके पर्सनल वो थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो स्टार्टअप में ये एक फैक्टर तो होता ही है। मैं आज स्टार्टअप कर पाया डिस्पाइट, मैंने तो 7 साल कमाने के बाद मैंने शुरू किया आफ्टर मैरिज। तो मेरे लिए दूसरे टाइप के कंस्ट्रेंट्स थे। मेरे लिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं था, पर मेरे लिए दूसरे कंस्ट्रेंट थे कि अब मैं मैरिड हूँ, बीवी है, बच्चा होने वाला है, और इज इट द राइट टाइम टू डू स्टार्टअप? मतलब अब मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए, मैं अच्छा खासा जॉब कर रहा हूँ, मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए, तो मैं वापस जीरो पे आ जाऊं। तो हाँ, वो चैलेंज हमेशा रहता है, लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट देयर हैव बीन मेनी स्टार्टअप फाउंडर्स जिनको ईएमआई से ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन था, बट दे केम आउट एज विनर्स। सो I think money shouldn't be a parameter to judge the capability of a founder who wants to do something. जिसे करना है वो कर लेता है। कर लेगा, ये ठीक है। बट अगर कोई जैसे बी स्कूल में पढ़ रहा है, राइट, अब वो बी स्कूल गया या इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको दिखने लगा ये स्टार्टअप है, इतना अच्छा चीज है, मतलब करना चाहिए मुझे भी, ये है वो है, बट फिर उसके एक बैक में एक बैकग्राउंड नॉइज आएगा, अरे नहीं तुम्हारा तो ईएमआई है, तुमने तो लोन लिया हुआ है, तुम कैसे करोगे? ये सारे रीजंस होते हैं, ये सारे रीजंस बहुत वैलिड रीजंस है विशाल, जो आपने कहा। यही सब रीजन की वजह से लोग कर नहीं पाते हैं। अगर मैं अपनी बात कहूं, मैं किसी और के बारे में नहीं बोल सकता, मैं बार बार अपना एग्जांपल ले रहा हूं। मेरे पास एक दूसरा रीजन था कि मेरे पास एक अच्छा खासा सैलरी आ रहा था और मुझे उसको जीरो करना था। तो मेरे लिए उस टाइम पे वही एक बहुत टफ डिसीजन था। फाइनेंशियल, मेरे लिए भी ये फाइनेंशियल डिसीजन था कि मैं एक 6 फिगर अमाउंट मंथली जो मुझे मिल रहा है, मैं उसको सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। तो ये डिसीजंस की वजह से ही लोग नहीं कर पाते हैं स्टार्टअप, जो मुझे ऐसा लगता है। बट जो ओवरकम कर लेता है फिर उसके बाद इतना टफ होता नहीं है। मतलब आई थिंक जो क्लियर देखो ने जो भी छोटा मोटा जो हमने अचीव किया है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ वेरी लॉन्ग टर्म विजन। और हम लोग डरते नहीं है कि ये नहीं हुआ तो हम ये सब नहीं सोचते। अगर ये सोचेंगे तो नहीं होगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तो कुछ और करेंगे, कुछ और नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे। और एक और कमेंट करना चाहूंगा सौरभ के पॉइंट पे कि क्लियर देखो चले नहीं चले, बट इन्होंने पीटीएम में काम के बड़े काम किया, ये भी तो एक एजुकेशन ही है ना। मान लीजिए इन्होंने चलाया, रिस्क लिया, क्लियर देखो चलाया, मान लीजिए नहीं चला, बंद कर दिया, किसी बड़े कंपनी ने एक्वायर कर लिया इन्होंने, या बंद ही कर दिया, जॉब में चले गए, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस जो था, इनका लर्निंग जो था ना, वो कोई बिजनेस स्कूल या कोई कॉलेज नहीं पढ़ा सकता है। करेक्ट, सही बात है। आई थिंक दिस इज व्हाट आई टेल लॉट ऑफ पीपल कि स्टार्टअप ट्राई करो, एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई करो स्कूल कॉलेज में। चला तो सब कुछ अच्छा, नहीं चला तो सीख जाओगे बहुत कुछ, एंड यू विल maybe get a better job, or you will stand out in the crowd at least. तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। यस मिस्टर रवि, see these two things, one is education, other is the startup, which the question you are putting, Vishal, it's a valid question and do have a consequences, but at the same time, see, this is my personal view, I am not generalizing it, but see, when startup or entrepreneurship you think of, it is not a smooth journey. Anybody who think of it's not a smooth journey, it's a very rough journey. A person who had started immediately after educations, or maybe after graduations, or maybe while doing the graduations, have a opportunity cost to forgo. At the same time, a guy who is doing job, let's say for 4-5 years, or he then plans to start up, then he has a financial constraint to forgo at that same time and to start something new. So things of startup remain the same
for a person who is starting after 6-7 years of experience or a person who is starting very new. In both the terms, there is a financial constraint. Of course, both the situations, financial constraint would be there. But this is more of mental strength or more of mindset. Are you going to have a rough life, or are you going to expose yourself to the challenges which is going to come in your way when you think of any doing startups or get into entrepreneurship? So, which even if you're able to know your why part, then you will be able to do it. See, why Saurabh put his example, or why Saurabh give this much confidence into the group doing this, because he was very much confident in terms of knowing the why part of why I want to do it, and today he's doing it with the same zeal and enthusiasms to continue, which is somehow suppress the financial part of the model, and he's more of enthusiasm, more of positivity, more of the take on things at present, make him to go in future. And which I personally feel the same. If you have a life, live it rough. Why you expect a smooth life? And so on. रवि, स्मूथ हो जाएगा, स्टार्टिंग में रफ है, बट अगर आपका विजन क्लियर है एंड आपको क्या चाहिए आपके स्टार्टअप से, आपके जॉब से या किसी भी बिजनेस से, इफ द विजन इज क्लियर एंड यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, तो एक टाइम पे स्मूथ हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं। और सौरभ, व्हाट रवि इज सेइंग इज कि स्मूथ बोरिंग होता है, रफ में ज्यादा मजा आएगा। दैट्स व्हाट इज सेइंग कि थोड़ा हाइक, रफ इज नॉट बैड। हाँ, रफ इज नॉट बैड, इट इज वेरी एक्साइटिंग। Yes. So my point is rough in the sense, see, smoothness, money will start flowing in. Maybe your family or people who are associated with it will start enjoying it. But you will be in same moment to do something new, which today maybe money would be a rough things for you, but tomorrow money would not be. Maybe expansion would be a new challenge for you, or maybe a new market would be a new challenge for you, where you have enough money in the bank. So I mean to say that roughness. करेक्ट। तो इसको अगर एक स्टोरी जैसा समझा जाए, तो कॉलेज में ये जो एक बैकग्राउंड नॉइज इज कमिंग दैट यू हैव अ लोन, यू शुड नॉट थिंक अबाउट स्टार्टअप्स, ये आ गया। जब तक उन्होंने जॉब लिया और जॉब लोन देने लगे, ऑब्वियसली गॉट यूज्ड टू दिस पेचेक बाय पेचेक। सो दिस होल थिंग इज काइंड ऑफ अ ड्रग्स काइंड ऑफ थिंग, एक एडिक्शन होता जा रहा है। पहले आपने एजुकेशन लोन लिया, उससे एमबीए किया, उससे एमबीए के बाद आपको जॉब करना पड़ा, क्योंकि अगर आपका माइंड चेंज भी हो गया तो दैट एजुकेशन लोन का बर्डन है, आपको लगा नहीं पहले जॉब कर लेते हैं, एजुकेशन लोन क्लियर कर लेते हैं, फिर कर लेंगे स्टार्टअप। फिर आपने जॉब करना शुरू किया, आपको एक रेगुलर पेचेक मिलने लगा, आपने ईएमआई क्लियर किया। जब ईएमआई क्लियर हो गई, आपके पास थोड़ा पैसा बढ़ गया, तो यू स्टार्टेड maybe buying comfortable things and all. So there is a subtle addiction that is creeping in one's life in this scenario. और जैसा कि अभी हमने बताया कि it's all about mindset, ये वो ठीक है। तो obviously, I mean, what I'll say is कि there are two types of people, or maybe few types of people. One extreme is obviously who has a very much startup mindset that okay, I'll take risk for sure. I mean, like no matter what. Then there will be somebody who will say कि नहीं, मुझे तो करना ही नहीं है, I am happy with this regular paycheck, ये है जो है, ये जॉब जाएगा, दूसरा खोजूंगा, whatever. But there are a lot of people who are actually falling in this gray area, जहाँ पे they are confused कि ये करे कि ये करे, इस साइड I mean like middle में है तो इस साइड कूदे कि इस साइड कूदे। और I think lot of premier institute people do get bored with their job also at some point. I mean, not all, but some maybe. So what I see is, usually this UG people, I mean, mainly are founders, and the PG people, MBA वाले जो होते हैं, वो co-founder बनते हैं या बाद में मतलब like CXO level पे आते हैं, join करते हैं teams. This is what I see as a general trend in my understanding, because of these and the one thing that I see as a controlling power here is this education loan. क्योंकि अगर यूजी में किसी ने लोन भी लिया होगा ना,
वो बहुत कम अमाउंट होता है एज एन कंपेयर टू लेट्स से एमबीए। जैसे आईटी आईएम ही अगर कंपेयर करते हैं, आईटी का फीस होगा 5 से 10 लाख व्हाटएवर इतना लिया होगा, बट एमबीए लिया तो 25 लाख और ऐड हो गया। नाउ द ईएमआई इज लॉन्ग एंड ऑल व्हाटएवर, एंड यूजी में 3-4 साल रहते हैं एक्सपेरिमेंट करने को, एमबीए में इट गेट्स टफर एंड देयर इज सो मेनी जीडीज, केस स्टडीज, ब्ला ब्ला, ये वो। तो somehow this there is a bit of a disbalance, और कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि एमबीए वाले सारे एटलीस्ट पार्ट टाइम हेल्प करें स्टार्टअप्स को स्ट्रेटजी मेकिंग में, बट कहीं ना कहीं वो लोग नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते, आई डोंट नो। ये सब हो सकता है। हाँ, तो मैं अपना थोड़ा पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहता था कि मैं जब स्कूल बचपन से मैं एंटरप्रेन्योर था, यानी जब मैंने पहली बार सुनाया है कि जब छोटा बच्चा था 3rd 4th क्लास में, तो मैंने कॉमिक्स की लाइब्रेरी स्टार्ट की, मतलब कि नेटफ्लिक्स टाइप का कॉमिक्स लाइब्रेरी का, ठीक है, नहीं चला। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज के लिए जब दिल्ली से +2 के बाद मैं जब पटना आ गया, तो मैंने अपना एक कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट और सेंटर खोला। उस समय स्टार्टअप वर्ल्ड भी उतना कूल नहीं था, आई एम टॉकिंग ऑफ 97 98 टाइप का होगा, नहीं किया। अचानक मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट इन कॉलेज से आ गया टाइम से, 2 साल लेट चल रहा था तो आ गया। तो पापा ने बोला कि सब जो स्टार्टअप जो करना है, मेरा स्टार्टअप प्रॉफिटेबल था, बट ने कहा कि ये सब तुम करते हो ना बेटा, बट हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, गरीब परिवार से हैं, तुम IAS का एग्जाम दे दो या और कुछ कर लो, बाद में नौकरी के बाद में तुमको जो मना है करते रहना स्टार्टअप वगैरह। तो मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी मैं IIM अहमदाबाद चला गया, स्टार्टअप ट्रिप खत्म। IIM अहमदाबाद गया, 2 साल नौकरी किया, इंटर्नशिप में ही मुझे अच्छी खासी पैसा मिला, वो पैसा का चस्का लग गया। फिर उसी बीच में मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया, एक काम मिल गया स्टार्टअप टाइप का, लंदन जाने का मिल गया, तो बहुत खुश। जी से ऑफर आया समर ट्रेनिंग का, अच्छा खासा, उसमें जी सबसे बड़ी कंपनी थी दुनिया की, जी कैपिटल। तो उसके बाद जो मुझे लंदन का जो ऑफर था कि स्टार्टअप वाला ऑफर, वो मैंने छोड़ दिया, मैंने कि नहीं वो रिस्की है, क्या है, और बड़ी कंपनी मैंने नहीं लिया। आज मुझे लगता है कि नहीं, मैं अपना पटना वाला जो स्टार्टअप A++ कंप्यूटर लैब चलाया होता, तो आज शायद मैं कुछ होता, मतलब कि रियली होता, नहीं कर पाया। उसके बाद IIM अहमदाबाद में मैंने पास ऑप्शन था कि मैं वो इनॉल्टस ज्वाइन करूं या मैं जी ज्वाइन करूं, मैंने जी चूज किया, अगेन रिस्क नहीं लिया। तो हमारे डिसीजंस का कॉन्सिक्वेंसेस हम पे फेंक करता है। तो जब मैंने रिस्क नहीं लिया, तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये हुआ कि आज भी मैं स्टार्टअप की जो भूख थी मेरी में रह गई, लेकिन मैं कभी कुछ कर नहीं पाया। मैं हमेशा एक एम्प्लॉय वाला जो हो गया कि मैं जी में काम कर रहा हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी है, फेमस है यहाँ। ये एक अच्छी बात हुई है कि मैं विदिन 1 साल मुझे US आने का मौका मिल गया, तो मैं थोड़ी और अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, बट फाइनेंशियल सिचुएशन सुधरी, लेकिन वो स्टार्टअप ड्रीम नहीं हो पाया। And that would have been like 2001 में ग्रेजुएट हूँ मैं, 2002 में मैं US आया। मैं 2002 से मैं स्टार्टअप कर रहा होता, 2001 से कर रहा होता, तो आज मैं 20 लगभग 19 साल में बहुत कुछ कर रहा होता, मैं हजारों लोगों को नौकरी दे रहा होता। अभी मैंने रिसेंटली कैलिफोर्निया आने के बाद स्टार्ट किया है, काफी लेट हो गया था। इकोसिस्टम में बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत ही इस सिस्टम में भी नया, मतलब सिलिकॉन वैली के नया हूँ, तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। ऑब्वियसली सीख रहा हूँ, मजा आ रहा है, लेकिन मुझे मानना है कि जितना जल्दी हो सके रिस्क ले लेना चाहिए। आज सौरभ ने रिस्क लिया इन स्पाइट ऑफ हिज गुड जॉब। बहुत सारे लोगों ने, जैसे अभिषेक जनता जिनके साथ मैं एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करता हूँ, जिन लोगों ने रिस्क लिया ना, वो रिग्रेट बहुत कम लोग करते हैं। मतलब कि सक्सेस हो सकता हो नहीं, बट लर्निंग एक्सपीरियंस इटसेल्फ इज वर्थ इट। सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि टेक द रिस्क। अतुल सर, एक सवाल पूछूं आपसे? बिल्कुल सर, मुझे ये बताइए, जब आपको मन था स्टार्टअप करने का या अपॉर्चुनिटीज मिली थी, तो आपका जो सर्कल था, उस सर्कल में जो आपका नेटवर्क था, जो क्लोज फ्रेंड्स थे, जिनके साथ आप उठते बैठते थे, एंजॉय करते थे, क्या वो एंटरप्रेन्योर थे या फिर वो नॉर्मल कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज थे? सब नॉर्मल एम्प्लॉइज थे, और मेरे पिताजी के जो दोस्त हैं या जो फैमिली सर्किल में हैं, तो पिताजी क्यों, एक बिहारी क्या ड्रीम होता है हर पेरेंट्स का, बेटा IAS बने, IAS नहीं बने तो बैंक में जाए, रिजर्व बैंक जाए, स्टेट बैंक जाए। तो वो सर्किल, और लेकिन मैं पेरेंट्स को या कम्युनिटी को दोष नहीं दूंगा, मेरा रिस्क एपेटाइट, मैंने रिस्क नहीं लिया, लेकिन बहाना बनाया कि नहीं पेरेंट्स के लिए जिम्मेवारी है, लेकिन नहीं सर, वो रीजन नहीं है।
वो रीजन नहीं है. रीजन इज ओनली संगति. इफ यू वुड हैव बीन, जैसे बोला जाता है ना, अ पर्सन इज अ एवरेज ऑफ 5 पीपल ही स्पेंड्स टाइम विद. तो अगर अब मैं भी बहुत एक्सीडेंटल बना हूँ, बिकॉज 7 साल कॉर्पोरेट करके एंटरप्रेन्योरशिप करना डजंट मेक एनी लॉजिकल, कोई सेंस नहीं बैठता है. अगर मुझे करना होता तो मैं बीटेक के बाद ही करता. बट मैं भी एक्सीडेंटल बना हूँ जस्ट बिकॉज कि जब मैं पेटीएम के टाइम पे था तो पेटीएम का स्टार्टअप कल्चर था. और पेटीएम से पहले जो मेरा एक जॉब था, एक छोटी सी कंपनी थी, मैं उसमें इंडिया का सेल्स हेड था और जो फाउंडर था वो बॉस्टन में बैठता था. और मैं वर्चुअली 60 लोग का टीम हेड कर रहा था यहाँ पे. और वहां पे मुझे वो स्टार्टअप का ना फील आया कि सारा डिसीजन मेरे ऊपर था. तो उस वजह से प्लस मैंने बहुत कुछ बीच बीच में छोटे छोटे चीज किए उस कंपनी में आने के बाद, जब मुझे समझ में आया कि स्टार्टअप होता क्या है. अगर वो नहीं होता तो शायद आज मैं क्लियर देखो नहीं चला रहा होता, मैं पेटीएम में या किसी अच्छी जगह पे काम कर रहा होता और पैसा कमा रहा होता. कंप्लीटली एग्री करता हूँ. एक और एग्जांपल देता हूँ मैं सौरभ, पर्सनली है कि मेरे एक IIM अहमदाबाद में गेस्ट फैकल्टी आते थे, काफी बड़े एंटरप्रेन्योर हैं अहमदाबाद के, बहुत बड़े, सुनील हांडा. तो बहुत ही इंस्पायरिंग है. हमारे एक टर्म में लेक्चर लेते थे, एक पूरा टर्म हम लोग को पढ़ाते थे. तो सुनील हांडा जी ने वो जो कोर्स था, लेम कोर्स, लेबोरेटरी इन एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशन, लेम कोर्स बहुत फेमस कोर्स था. तो कुछ लोग लेते थे उस लेम कोर्स में. सब लोग अपनी अपनी कहानियां बोलते थे. पूरे टर्म में हम लोग आपस में ट्रैवल करते थे, घूमते थे, लर्निंग वाइल ट्रैवलिंग टाइप का था. तो लेम कोर्स में सुनील हांडा ने मेरी कहानी जब सुनी कि तुम पटना में स्टार्टअप करने वाले थे, बचपन में ये करने वाले थे, फिर ये करने वाले थे, तुम ये IIM अहमदाबाद के बाद तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास जी का ऑलरेडी प्री प्लेसमेंट ऑफर था. तो उन्होंने कहा कि ये जी छोड़ो, तुम जाओ सिलिकॉन वैली, और तुम्हारे रहने का, खाने का और फ्लाइट का सारा खर्चा मेरा है. आई हैड अ स्पॉन्सर आल्सो कि आई एम गोइंग टू मेक श्योर, एंड तुम्हारे पास बहुत सारे IIM के अलुमनी, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं सिलिकॉन वैली में, तुम चले जाओ. तो ये ऑफर मुझे 2001 में ऑफर था सुनील हांडा जी का. अगर मैंने उनका ऑफर ले लिया होता तो आज मैं सिलिकॉन वैली में 18 साल पहले होता, 19 साल पहले होता. मैंने नहीं लिया. तो अल्टीमेटली दिस वाज माय डिसीजन, नोबडी एल्स. सोसाइटी ने इन्फ्लुएंस किया, अगेन पेरेंट्स को अगेन यही था कि अरे जी का ऑफर है और तुम क्या ये सब सिलिकॉन वैली और ये सब बात कर रहे हो. उनको आइडिया नहीं था, मुझे भी आइडिया नहीं था, तो क्या मिस कर रहा हूँ. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. किसके साथ उठते बैठते हो, ये एस्पायर करते हो, वो आपके डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस करते हैं. दूसरा है कि आपका बैकग्राउंड, आपके पास बहुत सारे बैगेजेस होते हैं लाइफ में कि अच्छा आपको वो लोन चुकाना है, या आपको वो जिम्मेवारी पूरी करनी है, किसी की शादी करनी है, किसी को घर का, तो वो सारी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो वो भी एक फैक्टर होता है. बट सबसे बड़ा जो कंस्ट्रेंट होता है आप खुद. इफ यू आर द वन, आपको डिसीजन लेना है, आपको कंसिक्वेंसेस फेस करना है, तो आप करना चाहोगे तो आप 50 साल के बाद में आप मैकडॉनल्ड शुरू कर सकते हो, और नहीं करना है तो आप स्कूल कॉलेज में भी आप बहाना बना सकते हो. तो ऑल ब्लेम लाइज टू द पर्सन फॉर टेकिंग डिसीजन और नॉट टेकिंग द डिसीजन टू डू अ स्टार्टअप. मैं सारे ग्रुप के लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि हल्का सा 10% भी मन है ना, तो चांस ले लो. डोंट हेजिटेट, जस्ट टेक द चांस. कुछ बिगड़ने वाला नहीं है. नहीं हुआ तो फिर दोबारा तुमको MBA भी करना है, वो तुमको एडमिशन में तुमको हेल्प करेगा. हाँ, IIM अहमदाबाद के इंटरव्यू में भी जब मेरा सिलेक्शन होने के पीछे शायद एक रीजन हो सकता है कि जो प्रोफेसर्स जो बैठे हुए थे इंटरव्यू कमेटी में, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये तो 3 साल का जब 5 साल का डिग्री वाला आदमी है पटना के इन कॉलेज से क्या. तो मैंने उनको जो बताया कि हाँ पटना में मैंने ये A++ स्टार्ट किया था, फिर ये किया था, वो किया, तो उनको लगा ये थोड़ा बड़ा यूनिक है, डिफरेंट पीस है. तो IIM अहमदाबाद स्पेशली वैल्यू करता है कि ये थोड़ा नया नमूना आया है, सैंपल आया है, चलो इसको रखते हैं अपने. IIM अहमदाबाद उसको बहुत वैल्यू करता है, इसलिए शायद उन्होंने मैं ले लिया. डाइवर्सिटी नमूना इज नॉट द करेक्ट वर्ड, आई गेस. नहीं तो वो ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला तो सर. थिंग्स को और थोड़ा डिस्कस करते हैं, आज टाइम ओवर हो गया. कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस है ना, इट्स नॉट जस्ट फॉर कॉर्पोरेट जॉब, बट दिस विल आल्सो हेल्प यू इवन राइट अ वेरी गुड SOP, statement of purpose, for your higher studies, be it in India, be it in abroad. Muskan, you have a comment, please. You can have a comment. Like I just want to tell कि मुझे पहली बार सौरभ सर की स्टोरी पता लगी, and I'm really inspired, sir. Thank you so much for sharing. स्टोरी बहुत बार बताया इसने, तुमने ज्वाइन नहीं किया. Thanks, Muskan. Yeah. Okay. So we'll continue this, and we have other loans to talk about also. Yeah. So good night for today. Let's meet tomorrow.